Hello students. Today in this video we discuss about a new topic related to the electric dipole in an external electric field. In this video we discuss about work done in rotating an electric dipole in a uniform electric field. देखिए हमें क्या करना है इस वीडियो में कि अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं। पुट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसकी पोजीशन को थोड़ा सा रोटेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेस करना है आपको, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपको कितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जनरली ये जो आर्टिकल अभी आपको कराया जाएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो फॉर्मूला में एक आर्टिकल को ड्राइव करने में हेल्प भी करेगा और न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफी यूजफुल होगा। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8979558902। Okay, come back. So first of all we consider uniform electric field. You know very well about the uniform electric field is represented by the equidistant parallel lines with equal arrow length. Okay, see here on the board, same like this. This is first electric field line and second is this and third is this. Okay, similarly here the electric field we represent by 4 lines. Okay, you can take 5, 6 and so more. Okay, see here the separation between the electric field lines is same and the direction of electric field lines at each point is same. So these field lines represents a uniform electric field. Okay, now we put an electric dipole at this position. Okay, okay, clear? इसे डार्क कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे आपको ये लगे कि ये आपका एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, सपोज the angle formed by this dipole with electric field is theta. Okay, and here is the charge is minus q and here is the charge is plus q. Okay, so if the electric field is E and this and is denoted by A and this and is denoted by B. Okay, now see on the board clearly this negative charge minus q experiences an electric force due to this electric field. Okay, what is the direction of electric field in that situation? For this we take the formula of electric field. You know very well electric field vector E is defined as force acting on test charge or any charge due to electric field. Okay, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस चार्ज की हम बात कर रहे हैं और वो चार्ज आपका क्या है, निगेटिव। देखिए वेक्टर फॉर्म ली गई है इसलिए हम विद साइन पुट करेंगे। यदि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते तो उस कंडीशन में आपको जो चार्ज है वो आपको विदाउट साइन रखना होगा। एक्सक्यूज मी। So now see, according to this, the force acting on the negative charge minus q is given by vector F equals to minus k qe. Okay, and see on the board clearly the direction of electric force acting on this point charge minus q will be opposite to the direction of electric field. That is the direction of electric fields is towards left. Okay, see, suppose this is F1
ओके, वेक्टर F1 in the form of vector. ठीक है, it will be equals to minus k q e. Similarly, the electric force acting on this point charge plus q is given by E equals to vector F by plus q. That means the force acting on this charge will be plus QE. That is the direction of electric force acting on this point charge. It will be the direction of electric field. Okay, that means towards right. Okay, suppose this is F2 and this will be equals to plus QE. Okay, here we consider F1 and F2 due to direction, but magnitudes of both forces are same. Okay, see on the board clearly. So net force acting on dipole. Okay, in this situation, what situation? Uniform electric field. Okay, then F net is equal to vector F1 and plus vector F2. Putting the value of vector F1 and F2, after that we get minus QE plus QE. Both are cancel out to each other. That is, we get zero vector. That means the electric force, net electric force acting on the electric dipole in an uniform electric field is zero. That is the acceleration in the dipole, linear acceleration in the electric dipole will be zero. That means we can say that velocity of this electric dipole, linear velocity, will be constant if the dipole is in rest. Whose rest? Translational rest. Okay, then it will be in rest. That means we can say that there is no translatory motion in the electric dipole, but there is a combination of two electric forces with same magnitude but opposite direction, and the line of action of both forces are different. Line of action of both forces are different, do not coincide. So these forces makes a torque, that is moment of force. तो यहां पर आपका एक टॉर्क वर्क करेगा जो इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा. रोटेट किस डायरेक्शन में होगा आप देखिए, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ए से रोटेट करेगा. दैट मींस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो ये जो टॉर्क वर्क करेगा इस पर, वो ट्राई करेगा इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए. अब हमें क्या करना है कि इसे इसकी इस पोजीशन से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेस्ड करना है, और इस टॉर्क के अगेंस्ट जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका इस डाइपोल पर वर्क कर रहा है, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इसे डिस्प्लेस करने के लिए, वो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. देखिए, जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने यहां पर आपको बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि मैं पिछले आर्टिकल में टॉर्क हमने कैलकुलेट किया था, वहां पर ये स्किप हो गया था. और जब आप टोटल एनर्जी की बात करोगे तो ये पार्ट भी मेंशन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. सो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पर टॉर्क कितना है. यू नो वेरी वेल, आप जो कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. तो देखिए, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ
force acting on the electric dipole due to external uniform electric field E at an angle theta from the direction of electric field. Okay, you know very well about this. So is given by equals to PE, बोलिए, sin theta. This is equation first. We have taken here only magnitude. Okay, we have taken here only magnitude. Okay, now to rotate by small angle against the torque acting by electric field by small angle theta. See here, हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक इस टॉर्क के अगेंस्ट थोड़ा सा इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. आप चाहे तो इसका मिड पॉइंट ये ले सकते हो, ये हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया और ये एंगल भी आप यहीं से कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, तो अब आप जैसे ही इसे रोटेट करोगे तो रोटेट करने पर इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो लाइक दिस होगी, है ना. तो ये रोटेट होकर आपका यहां पर आ गया. नई सिचुएशन इसकी बन गई बी डैश और ए डैश. सपोज कर लीजिए इसे आपने स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट किया. कितना एंगल रोटेट किया? डी थीटा. तो विदाउट एनी एंगुलर एक्सीलेशन यदि आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आपको इस टॉर्क के अगेंस्ट इतना ही टॉर्क अप्लाई करना होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है ना. तो आपको किस में डायरेक्शन में रोटेट करना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर है ना. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको. चलिए अब यहां पर देखें, नाउ टॉर्क है ना. नाउ क्या लिखना चाहिए? नाउ टॉर्क applied on electric dipole to rotate by small एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगल कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा विदाउट एनी एक्सीलेशन. एंगुलर एक्सीलेशन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं. ये हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में. जब आप कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स करते हैं उस जगह ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इसी पॉइंट से यदि आप नोट करते हैं एंगुलर एक्सीलेशन. ओके,
against the torque acting on dipole due to इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इतना कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बट जब आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को करते हैं तो आपको वहां पर एक एक पॉइंट को नोटिस करना होता है। इसलिए हम आदत बनाते हैं कि आप उन पॉइंट्स को यहीं पर कंसीडर करके चले, तो वहां पर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हमने क्या लैंग्वेज की, हमें टॉर्क अप्लाई किया इसे थोड़ा सा रोटेट करने के लिए। तो रोटेट करने के लिए आपने टॉर्क अप्लाई किया बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा विदाउट एनी एक्सीलरेशन, क्योंकि उस कंडीशन में आपका बैलेंस होगा। अप्लाइड टॉर्क विल बी इक्वल्स टू एक्टिंग टॉर्क। और किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क अप्लाई हुआ, तो वो भी कितना होगा इस कंडीशन में। पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छोड़िए। तो देखना चाहो तो देख सकते हैं कि जब आप नेट टॉर्क निकालोगे तो टो अप्लाइड प्लस टो एक्टिंग इक्वल्स टू एंगुलर एक्सीलरेशन, नेट एंगुलर एक्सीलरेशन is 0. So this will be term in right hand side is 0. That means this will be equals to this, and tau 1 vector will be equals to minus tau 2 vector. Okay, that means the direction of these two torque will be is in opposite direction. So if is it this, then tau applied will be equals to minus tau acting, and this is equal to PE sin theta. Okay, see here, if we take this term is positive, then this will be negative. Okay, see on the board there is a very important point. अब आप देखिए, काफी नोट करने वाला पॉइंट है। यदि आप रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने पहले ही आपको कहा कि यदि आप एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स में काफी आपको हेल्प होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, जब आपका टॉर्क इस डायरेक्शन में रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका एंगल डिक्रीज होता है ना। तो आप देखिए कि एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इस डिक्रीमेंट को शो करते हैं। आपको पता है ना कि आप जब इस डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, तो आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस डायरेक्शन में एंगल आपका निगेटिव होता है। तो यदि आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं एक्टिंग वाले की, तो ये वाली डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में एंगल आपका निगेटिव होगा, इसलिए आपको वो निगेटिव साइन बाहर निकलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन। तो हम एक्टिंग में निगेटिव लेंगे तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने पहले ये पॉइंट स्किप कर दिया था जिससे आपको समझाया जा सके। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा ना कि हमने यहां पर निगेटिव साइन क्यों लिया और यहां पर पॉजिटिव साइन क्यों लिया। देखिए ये हो गया आपका अप्लाइड टॉर्क। अब इस अप्लाइड टॉर्क के कारण आपने इस एक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। अब वर्क क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब आप एंगुलर कंडीशन में चले जाते हैं तो फोर्स कन्वर्ट हो जाता है टॉर्क में, और सिंपल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका कन्वर्ट हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो सो वी कैन से दैट। और एक बात और ध्यान रखिए, जो सिचुएशन है वर्क डन की, ये वेरिंग टॉर्क सिमिलरली वेरिंग फोर्स है ना। जैसे वेरिंग फोर्स की कंडीशन होती है, वैसे ये किस कंडीशन है, वेरिंग टॉर्क की। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे एंगल आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टॉर्क भी आपका इंक्रीज होगा। दैट मीन जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा आपको टॉर्क मोर एंड मोर अप्लाई करना होगा, और जब टॉर्क मोर अप्लाई करोगे तो वर्क भी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको लार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम स्मॉल पार्ट की बात कर रहे हैं। सो वर्क डन, लैंग्वेज बना देता हूं। सो वर्क डन बाय अप्लाइड टॉर्क, है ना, अगेंस्ट
एक्टिंग टॉर्क, है ना। So work done by applied torque against acting torque to displace, to rotate by small angle थीटा 2, या ऐसा लिख दीजिए डी थीटा। तो क्या होगा ये निकालिए। देखिए आर्टिकल डिफिकल्ट नहीं है, उसके जो पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं उससे कंसेप्ट में हमें लेकर आना है जिससे आपको प्रॉब्लम्स करना इजी हो। आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि जो सीबीएसई का जो पैटर्न होता है वो कंसेप्चुअल होता है और इन्हीं आर्टिकल से हेल्प से मैं आपको उन कंसेप्ट्स को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे हम जब हम न्यूमेरिकल्स लेंगे उन न्यूमेरिकल्स को करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो since angular displacement is very small, so the work done will be very small. dw will be equals to applied into angular displacement d theta. What is the value to applied is pe sin theta into d theta. So total work done, so net work done to rotate dipole from theta 1 position to theta 2 position. Okay, that means w will be equals to integral dw from theta 1 position to theta 2. Okay, and putting the value theta 1 is here and theta 2 is here. Okay, initial situation is theta 1 and final situation is theta 2. Putting the value of w, what is that dw? Pe sin theta into d theta. Okay, in case of uniform electric field E is constant and electric dipole moment of an electric dipole is also a constant, so we can take out of the integration both physical quantities P and E, and inside the integral is sin theta into d theta, and you know very well about the integration of sin theta is cos theta minus cos theta. Okay, minus cos theta, and the limit is theta 1 to theta 2. Putting the value of theta 1 and theta 2 we get minus sin, आप बाहर ले लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस विल बी cos theta 2 minus cos theta 1 and implies that PE cos theta 1 minus cos theta. Remember this formula because this formula is very important for the for solve the numerical problems. Okay, and this formula we will use in a article in next step if you want. ओके, तो यदि आपसे कहा जाए कि आपका डाइपोल इस सिचुएशन में है और आपको इसे रोटेट करके इस सिचुएशन में लेकर आना है, तो थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज 90 डिग्री, तो थीटा 1 इज 0 तो दैट मीन्स इज 1 एंड दिस इज 0 तो दैट इज W इज इक्वल टू P. इसका मीनिंग ये होगा कि आपको इसे इस सिचुएशन से यहाँ तक रोटेट करने के लिए PE के इक्वल वर्क करना होगा. और आप जानते हैं कि जब भी आपको कोई कुछ करने के लिए वर्क करना पड़ता है तो वो वर्क उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कि एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो यही वर्क आपका एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर होगा. ओके, क्लियर है ना. तो यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए. और यदि आप अच्छे से अच्छा वीडियो बनवाना चाहते हैं और टॉपिक्स को अच्छे से और भी समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अदरवाइज मुझे खुशी नहीं होगी. ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.